Now we will see describing motions H.C. Verma numericals question number 18. In this question it is mentioned an object is moving along a straight line with a uniform speed of 10 meter per second, and you have to plot a graph showing distance versus time. So the velocity given is 10 meter per second and you have to plot a graph of distance versus time. So first of all we have to find out distance. So time is given from 0 to 10 second. So we have just taken a table time in second 0 1 2 3 up to 10, and we will find out the distance by the formula of velocity into time. Distance is equal to velocity into time. So velocity is constant, that is 10 meter per second. 10 meter per second into 0 0, 10 into 1 10, 10 into 2 ultimately 10 3, 10 4, 10 5, ultimately we will get 10 into 10, that is 100 meter. So these are the distance table, and these are the this one is the timetable. Yes. So we will plot a diagram like this one. We will just take distance on the vertical one and time on the horizontal one. Time will take 1 2 3 4 5 up to 10, time in seconds, and then distance in 10 20 to 100. Okay, now first one is 0 0, means in 0 second it covers 0 meter. So this will be here. In 1 second it covers 10 meter, means 110. In 2 seconds it covers 20 meter, 220, like this, 330, 440, 550, 660, 770, 880. Ultimately you will get a uniform डायग्राम. आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बिल्कुल मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन फिगर मिलेगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. Now we will see question number 19. This very question is also same as question number 18, but there is a little difference. The velocity here is 5 meter per second. Time we have to take from 0 to 5 seconds, and in this way we will find the distance the same way as we did in question number 18. So 5 meter per second into 0 time, ये आपको 0 मीटर हो गया. देन 5 इंटू 1 5 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया. Now we have to plot a distance time graph. Okay, so we will take 5 10 15 20 on the horizontal one, vertical one. Distance this will be the distance in meter, and the horizontal one we will take time in seconds, that is 1 2 3 4 5. Now we have to plot 0 0, that will be here simply 1 5, this one 2 10, 3 15, 4 20, and 5 25. You can see here, if we just take this one as, it will be like this. Okay, so this is the plotting of question number 19. That's it. Now we will see question number 20. As it is mentioned in the question, the driver of a car traveling at 36 km per hour. इसकी स्पीड कितनी है कार ड्राइवर की? 36 km per hour. सबसे पहले इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कर देंगे, 5/18 से डिवाइड करके it will become 10 meter per second. Then he applies brakes to deaccelerate uniformly. और वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है, और जो डीएक्सलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, यूनिफॉर्म होता है. ठीक है, द कार स्टॉप्स इन 10 सेकेंड. अब वो कार को स्टॉप करने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड. तो जाहिर सी बात है, डीएक्सलरेशन हो रहा है तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव टू प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ. Okay, so we will find acceleration first of all, v minus u by t, that is 0 minus 10 by 10, and it will be negative क्योंकि डीएक्सलरेशन हो रहा है इसलिए ये नेगेटिव में होगा. ठीक है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो देख लेते हैं कि अब चेंजिंग वेलोसिटी कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं. आपको जाहिर सी बात है 10 सेकेंड तक जा रहा है तो मुझे 0 से 10 सेकेंड लेना पड़ेगा. 0 1 2 3 अप टू 10 सेकेंड. ओके,
नाउ चेंजिंग वेलोसिटी अब हम लोग देखेंगे क्या क्या है आपको। फर्स्ट में देखिए चेंजिंग वेलोसिटी जब 0 सेकंड था, मतलब उसने ब्रेक जब नहीं लगाया था, तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड में जो ब्रेक लगाता है वो ये 0 से आपको 0 के टाइम का एक्सेलरेशन बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो 10 का 10 रह गया। नेक्स्ट टाइम में जब उसने ब्रेक लगाया मतलब 1 सेकंड में, ये आपको फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला होता है v माइनस यू इज इक्वल 80। हम लोग ये v माइनस यू को चेंज इन वेलोसिटी लेंगे। ओके, ये चेंज इन वेलोसिटी लेंगे। सो चेंज इन वेलोसिटी नेक्स्ट सेकंड में कितना होता है -1 इंटू 1। ये -1 एक्सेलरेशन है यहाँ वाला और ये 1 टाइम है। -1 इंटू 1 आपको -1 का स्पीड में कमी हुई, तो -1 की कमी हुई मतलब 10 - 1 9। ओके, 9 मीटर पर सेकंड एंड इट विल जस्ट गो ऑन। इसी तरह यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और इसलिए मूव ऑन करता है। 10 के बाद 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा। आप इस तरह से फाइंड आउट भी कर सकते हो। जैसे सपोज कर लो ये ही निकालना आपको, तो v माइनस यू इज इक्वल टू, ये आपको टाइम एक्सेलरेशन कितना -1 ही रह जाएगा और टाइम कितना है यहाँ पर 8 है। -1 इंटू 8 मीन्स -8। तो -8 का डी एक्सेलरेशन हो रहा है, -8 का से अब वो डिक्रीज़ कर रहा है मोशन स्पीड उसकी। तो हम क्या करेंगे 10 - 8 कर देंगे, अल्टीमेटली मुझे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे है। ओके, नाउ वी हैव टू प्लॉट द डायग्राम स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ। सो टाइम ये ले लेंगे सेकंड्स में और ये स्पीड है मेरी, ये मैंने मेंशन नहीं किया, स्पीड है। स्पीड किस होगी आपको जाहिर सी बात है मीटर पर सेकंड में मैंने लिया है, इसलिए मीटर पर सेकंड में स्पीड होगी। अब हम इसी तरह प्लॉट करेंगे इन दोनों को लेते हुए। ये आपको 10 तक गया, ये आपको ये भी 10 तक गया, तो 10 तक ये ले लेंगे, ये भी 10 तक ले लेंगे। और ये देखिएगा उल्टा बढ़ रहा है, 0 10 0 10 मेरा यहाँ है, देन 1 9 1 9 2 8 3 7। या आप अगर इसको देखोगे तो अल्टीमेटली ये यहाँ पर 2 पे आ भी जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी देख लो, जैसे 6 है 6 4, तो 6 यहाँ से आ गया आपको और ये 4 यहाँ गया। ठीक है, इन द सेम वे हम लोग प्लॉटिंग कर देंगे और फिर ये देखिएगा ये डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन रिटार्डेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। दैट्स इट इन क्वेश्चन नंबर 20।